So next segment will start is Faraday's laws of electrolysis. So write down the next term, Faraday's laws of electrolysis. तो Faraday ने दो laws बताए थे, first law and second law. Although बहुत पुराने laws हैं, current time में हम इसे Bohr concept और law of Gram equivalent से replace कर चुके हैं. But आपके examination में जो भी directly laws पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. So write down first Faraday's laws of electrolysis, and then write down the first law. For first law, you write down amount of a substance deposited at an electrode. Amount of a substance deposited. Amount of a substance deposited at an electrode. Amount of the substance deposited at any electrode is directly proportional to the charge supplied during an electrolysis. So write down amount of a substance deposited at any electrode is directly proportional to the charge supplied during the electrolysis. So well, let's say W gram deposit होगा तो W is proportional to Q और W यहाँ पे जो है वो amount deposited है Q जो है वो charge supplied है. Q is charge supplied. अब जानते हो हम चार्ज को करंट इनटू टाइम लिख सकते हैं तो दिस कैन बी रिटन एज W इज इक्वल टू W प्रोपोर्शनल टू I इनटू T और प्रोपोर्शनलिटी हटा के अगर कांस्टेंट लगाएं तो दिस ZIT. ये फैराडेज फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला हो गया. W इज इक्वल टू ZIT और इस एक्सप्रेशन में जो Z है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. तो आप आसानी से समझ सकते हो. आपको इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर बताया था मैंने कि इलेक्ट्रोलाइसिस इज बेसिकली कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. तो हमने जो करंट I इनटू T से चार्ज सप्लाई किया उस चार्ज के करस्पॉन्डिंग कितना मास डिपॉजिट होगा दैट इज W. बेसिक इक्वेशन इज W इज इक्वल टू ZIT. Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. तो ये डिसाइड कर रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इक्विवेलेंट है. ओके. Then come to the second term, which is Faraday's second law. Next हम लिखेंगे Faraday's second law. So first note down the law. When two or more than two cells are connected in series, when two or more than two cells are connected in series, when two or more than two cells are connected in series, then the amount of a substance, when two or more than two cells are connected in series, then the amount of a substance deposited at each electrode, then the amount of a substance deposited at each electrode is directly proportional to its equivalent weight. When two or more than two cells are connected in series, then the amount of a substance deposited at each electrode is directly proportional to its equivalent weight. तो आप समझ रहे हैं कि अगर हम दो या दो से ज्यादा सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, करंट सेम होती है. सो इफ इट इज अ सीरीज कनेक्शन, then current is same for all the cells. करंट सेम हो गया इसका मतलब चार्ज सप्लाइड सेम हो गया. तो फैराडे सेकंड लॉ के हिसाब से जो भी अमाउंट डिपॉजिट होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट. यहाँ पे W जो है वो है अमाउंट डिपॉजिटेड. So can you explain this?
W जो है वो अमाउंट डिपॉजिटेड है और E जो है वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस है। So these are the laws which is experimentally verified. सेकेंड लॉ में मैंने बताया कि अगर दो या दो से ज्यादा सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तो सीरीज में कनेक्ट करोगे तो सब में चार्ज सप्लाइड सेम हो गया, तो हर इलेक्ट्रोड पे जो अमाउंट डिपॉजिट होगा that will be directly proportional to equivalent weight of the substance. So W proportional to E, or you may write simply W by E is equal to constant. And if I consider for different cells, so it is W1 by E1 equal to W2 by E2 is equal to W3 by E3 and so on. ऐसे जितने भी सेल्स कनेक्ट करते जाओगे सबका मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट हम लोग सेम करते चलेंगे. So please can you explain us the second law again? अभी एक मिनट रुकिए. W1 by E1 equal to W2 by E2 is equal to W3 by E3 is equal to W4 by E4 और ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो यही सीरीज चलती चली जाएगी. यहाँ पे जो W by E है इसको हम लोग बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट. आप लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा हुआ है टर्म. W by E को बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट. This is your Faraday's second law. So W by E is constant. जितना मास डिपॉजिट Can you re-explain? उसका इक्विवेलेंट वेट या प्रोपोर्शनलिटी लानी है. ठीक है. So now write down a question. How many Faraday charge is needed? How many Faraday charge is needed? How many Faraday charge is needed for 1 mole of substance? How many Faraday charge is needed for 1 mole of substance for the following changes? How many Faraday charge is needed for 1 mole of substance? How many Faraday charge is needed for 1 mole of substance for the following changes? उसके बाद आप क्वेश्चन नोट डाउन करिए फटाफट, फिर मैं आपको सॉल्व करना बताता हूँ. ये सारे क्वेश्चन फैराडेज फर्स्ट लॉ पे बेसिस है, बेस्ड है. उन्होंने पूछा है कि 1 मोल सब्सटेंस डिपॉजिट करने के लिए कितना चार्ज सप्लाई करना है, तो यानी कि हमें मास और चार्ज कहीं ना कहीं रिलेट करना है. दैट मींस क्वेश्चंस रिलेटेड टू फैराडेज फर्स्ट लॉ. अब सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम इसको सिंपली मोल कॉन्सेप्ट की टेक्निक से सॉल्व करेंगे. आप पहला काम क्या करोगे, इक्वेशन को बैलेंस करके लिखो. बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का मतलब आप समझते हैं, आपको मास बैलेंस करना है और चार्ज बैलेंस करना है. सो लेट्स से वी बैलेंस Al3 प्लस आयन. तो दूसरी तरफ देखो एल्यूमिनियम है तो मास तो बैलेंस है. अगर मैं लेफ्ट साइड में 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूं तो चार्ज भी बैलेंस हो गया. अब आप जानते हो किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसी के प्रोपोर्शन में रिएक्शन होती है. तो अगर हमने 1 मोल Al3 प्लस दिया तो हमें 3 मोल इलेक्ट्रॉन यूज करना पड़ेगा. ठीक है. अब यहाँ पे 3 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग से लिख लेते हैं. हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये चीज सीखी होगी. ये जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. और अगर हम चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, 1 मोल का मतलब होता है अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, so into Na which is 1.6 into 10 to the power minus 19 into 6.023 into 10 to the power 23. और अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आता है 96500 कूलम. और उसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं 1 फैराडे. या शॉर्ट में कई बार लिखा जाएगा 1 फैराडे इज 96500 कूलम. एंड दिस इज चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन. ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा. तो सीधा रिजल्ट याद रखना है दैट फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज इज 96500 कूलम. आप लोगों को बहुत सारे लोगों को ये डेटा पता है, तो अब इसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. दिस इज द इंफॉर्मेशन व्हिच विल यूज इन आवर क्वेश्चंस. आप चाहो तो इसको अलग से बॉक्स कर लो. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन. तो अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज करेंगे. अब आप ध्यान से देख सकते हो कि अगर 1 मोल Al3 प्लस करना है तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो चार्ज कितना हुआ
3 फैराडे। ये एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी है तो 96500 से मल्टीप्लाई करके लिखते चलेगा। सो मैं आंसर लिख रहा हूँ साथ साथ, तो देखो इसका आंसर आएगा 3 फैराडे, या फिर आप इसको 96500 से मल्टीप्लाई करो हर बार तो कूलम्स में भी आ जाएगा। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ 3 फैराडे चार्ज, और यू मे सिंपली राइट इट 3 into 96500 कूलम। क्लियर? ऐसे अगला पार्ट सॉल्व करेंगे। अगले पार्ट में देखो Fe3 प्लस से Fe2 प्लस कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन इज Fe3 plus to Fe2 plus। So, हाँ बोलो। so the answer should be given in Faraday or Coulomb. That will be dependent on your options। अगर ऑप्शन में कूलम में दिया है तो कूलम में सॉल्व करके लिखना पड़ेगा, फैराडे में दिया है तो फैराडे में लिखना है। कुछ भी नहीं दिया तो किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। इवन योर बोर्ड एग्जामिनेशन यू कैन राइट 3 फैराडे, दैट इज परफेक्टली करेक्ट आंसर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ऑप्शन होंगे तो एज पर द ऑप्शन यू हैव टू मार्क। सो नेक्स्ट केस इज Fe3 plus to Fe2 plus। अब इसमें अगर हम चार्ज बैलेंस करेंगे तो देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो मास और चार्ज बैलेंस हो गए, दोनों तरफ आयरन बैलेंस है, और Fe3 प्लस 3 प्लस चार्ज और 1 माइनस 2 प्लस चार्ज हुआ, राइट हैंड साइड पे भी 2 प्लस चार्ज हुआ। तो यू कैन से 1 मोल Fe3 प्लस कितने से रिएक्ट कर रहा है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन से, एंड 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हुआ? 1 फैराडे, और सिंपली 96500 कूलम। अगले पार्ट का आंसर हो जाएगा 1 फैराडे और 96500 कूलम। अब बार बार हम लोग 96500 कूलम नहीं लिखते हैं, इनकन्वीनियंट, तो हम सारे आंसर्स फैराडेज में रिपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं। अब एज पर द क्वेश्चन जो रिक्वायरमेंट होगी वैसे प्रोसीड करेंगे। अगर क्वेश्चन में फैराडेज में आंसर पूछा है तो फैराडेज में रिपोर्ट कर दीजिएगा, कूलम से पूछा है तो कूलम से रिपोर्ट कर दीजिएगा। ओके, आगे वाले पार्ट चाहो तो आप एक बार अपने आप ट्राई करके देखो। इफ यू आर थॉरो विद द ऑक्सीडेशन नंबर तो मुझसे भी जल्दी कर सकते हैं। जैसे MnO4 माइनस में मैग्नीज का ऑक्सीजन स्टेट +7 है, मैग्नीज 2 प्लस में ऑक्सीजन स्टेट कितना है? +2, चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट कितना हुआ? 5, तो 5 फैराडे चार्ज लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे सॉल्व करो, या मैग्नीज ऑक्सीजन स्टेट देखो +7 है, राइट हैंड साइड इट इज +4, कितना चेंज हुआ? 3 फैराडे। समझ आया? नेक्स्ट केस में देखो क्रोमियम है, ऑक्सीजन स्टेट +6, Cr3 प्लस में ऑक्सीजन स्टेट +3, तो चेंज हुआ 3 फैराडे, बट वी हैव 2 क्रोमियम। क्वेश्चन में देखो ध्यान से, वी हैव 2 क्रोमियम, so that means you have to write the change for 2 chromium, so you have to first balance with 2 chromium, so it will be 6 faraday or 6 into 96500 coulomb। Next case if you will write it is +8/3, oxygen state if you will calculate, right hand side it is 3, so change is 1/3। हमारे पास आयरन कितने टोटल? 3, so 1/3 into 3 means 1 faraday, or simply 96500 coulomb। If you wish to solve it with oxidation number, then it is a oral question, you need not to write anything. But if you are not comfortable with change in oxidation number per mole, then we can go with the number of electron exchanged। वो भी same process है, तो बहुत अंतर नहीं है, like थोड़ा सा extra time लगता है, otherwise question तो perfectly solve होगा। आपको दोनों तरह की ट्रिक्स याद रखनी है। आपने बैलेंसिंग और रेडॉक्स रिएक्शन सीखा था ना, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से और एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, तो वही कर रहे हैं हम लोग। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके निकाल रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर से कर रहे हैं तो डायरेक्टली चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं, बिकॉज़ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन थ्रू मोल कांसेप्ट। 1 मोल सब्सटेंस से कितने मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा ये लिख रहे हैं बेसिकली। तो Cr2O72 माइनस में क्रोमियम ऑक्सीजन स्टेट +6 है, तो Cr3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑक्सीजन स्टेट का चेंज आया 3 यूनिट्स, बट वी हैव टू राइट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। So change in oxidation state per molecule, तो molecule क्या है? Cr2O72 minus, that contains 2 chromium, so एक chromium का change हुआ 3, दो chromium का change कितना हुआ? 6। ठीक है, अब जैसे किसी को इसको सॉल्व ही करके लिखना है तो मैं उसको सॉल्विंग से लिख दे रहा हूँ। सी पार्ट में देखो हमने आपको दिया होता है कि MnO4 माइनस से हमें Mn2 प्लस बनेगा, तो बैलेंसिंग अगर स्टार्ट करेंगे तो पहले मैग्नीज देखो बैलेंस है इस इक्वेशन में, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आपको पता है कि एसिडिक मीडियम में H+ और वाटर यूज करते हैं, बेसिक मीडियम में OH- और वाटर यूज करते हैं। सो इफ यू विल सिंपली बैलेंस दिस इक्वेशन, सो यू विल सी दैट ऑन लेफ्ट हैंड साइड 4 ऑक्सीजन आर एक्स्ट्रा, so to balance them we'll use 4 water। now to balance hydrogen we'll add 8 H+,
नाउ चार्ज इफ यू नोटिस तो यहाँ पे 8 माइनस चार्ज है और ये 8 प्लस चार्ज है, टोटल कितना हुआ 7 प्लस, राइट हैंड साइड इट इज 2 प्लस, सो चेंजेस 5 इलेक्ट्रॉन्स, so you will add 5 electrons. Okay, सर डी वाला एक्सप्लेन करो। फोर्थ ऑप्शन में देखो MnO4 माइनस हमने लिखा, बैलेंस करने के लिए राइट साइड में MnO2 और मैग्नीज बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मैंने 4OH माइनस लिखा राइट हैंड साइड में, और उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए 2H2O लिखा लेफ्ट हैंड साइड में. Now you will check in left hand side we have total 6 oxygen, right hand side also we have 6 oxygen, left hand side we have 4 hydrogen, right hand side also we have 4 hydrogen, magnesium is balance, तो mass balance हो गया. अब चार्ज बैलेंस कर लो, if you balance the charge तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस चार्ज है, राइट हैंड साइड में 4 माइनस चार्ज है, so add 3 electrons. और यही चीज देखो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बताया था, MnO4. अब इसी को ऑक्सीडेशन नंबर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ मैग्नीज ऑक्सीडेशन नंबर देखो +7 है, राइट हैंड साइड इट इज +4, so change in oxidation number is 3 units. सर +4 कैसे हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है ना आपको? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा होगा ना, MnO2 का ऑक्सीडेशन नंबर अगर मान निकालना है तो मैग्नीज X एज्यूम कर लो, ऑक्सीजन -2 होता है, सो -2 * 2 = 0, X = +4. ओके सर। ठीक है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालोगे तो उससे भी आंसर आएगा, बैलेंस करके निकालोगे तो उससे भी आंसर आएगा, दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास हमेशा. तो इसका अगला केस चेक कर लो, ई ऑप्शन लेट्स से. So in option E it is given Cr2O72 minus Cr3 plus. तो Cr2O7 से Cr3 plus बैलेंस करेंगे, first you balance chromium, so 2Cr3 plus. Now you balance oxygen, so we'll write 7 water, then balance hydrogen 14H plus. Now charge, left hand side total charge is 14 plus and 2 minus, so it is 12 plus. Right hand side it is 2Cr3 plus, so it is 6 plus. कितना डिफरेंस हुआ? 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो 1 मोल के लिए 6 फैराडे आंसर हो जाएगा. ऑक्सीडेशन नंबर से किसी को करना है तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, ये ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो और हमारे पास 2 क्रोमियम है, so we'll write change in oxidation number per mole of Cr2O72 minus is equal to 6. अगर सिंप्लीफाई करना है तो 6 minus 3 into 2 कर लो, अगर अच्छे से समझते हैं. So it is like +6. Okay. Next case if we'll check Fe3O4 to Fe3 plus. So first you balance iron, तो we have balanced it with 3 iron. Now balance oxygen, तो ऑक्सीजन के हम लोगों ने यहाँ पे 4H2O लिखा. हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में 8H plus लिखा. Now you see on left hand side it is 8 plus charge and right hand side we have total 9 plus charge. So add 1 electron on right hand side, 1 Faraday. Or if you want to solve it through oxidation number, so here oxidation number of iron is +8/3, while on right hand side it is +3. तो फिर से वही process, change in oxidation number per mole of Fe3O4 if I'll write, it is 3 minus 8/3. ये तो एक आयरन के लिए चेंज हुआ into 3. This comes out to be 1. So change in oxidation per mole आपको कैलकुलेट करना है. That will give you 1 Faraday. ठीक है. Now the last part जिसको मैंने नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन कन्वर्जन किया हुआ है. ये सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कॉमनली पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, तो आप इसका फाइनल रिजल्ट भी याद करके रख सकते हो. इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. सो फर्स्ट यू विल राइट नाइट्रोबेंजीन एंड
and from this I am converting it to aniline. So again same technique of balancing. नाइट्रोबेंजीन में देखो नाइट्रोजन और कार्बन तो सिस्टम बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड में 2H2O लिखो, हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे तो राइट हैंड साइड में देखो टोटल 6 हाइड्रोजन हो गया तो 6H+, और फिर चार्ज बैलेंस करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब अगर 1 मोल नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराएंगे तो वी नीड 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो यू कैन सिंपली से 6 फैराडे चार्ज। समझ आया? 1 मोल नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में रिड्यूस कराने के वी नीड 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, and 6 moles of electron is nothing but 6 Faraday charge. Clear? So last वाले part का भी आंसर लिखेंगे तो it comes out to be 6 Faraday, or you can simply write 96500 into 6 coulombs. ऑप्शन जी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो उसका रिजल्ट आपको सीधे सीधे अगर समझ आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको डायरेक्टली लर्न कर लो, बिकॉज दिस इज स्टैंडर्ड क्वेश्चन, दिस विल डेफिनेटली कम। सो जी पार्ट एक बार फिर से देख लो। नाइट्रोबेंजीन को हमने बैलेंस करने के लिए पहले एनिलीन के साथ नाइट्रोजन और कार्बन बैलेंस किया, हाइड्रोजन बैलेंस ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 2H2O लिखा राइट हैंड साइड पे, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 6H+ लिखा लेफ्ट हैंड साइड पे। अब चार्ज बैलेंस करेंगे तो 6H+ के लिए 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो टोटल 1 मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन के 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा, 6 फैराडे चार्ज। यही काम ऑक्सीडेशन नंबर से करेंगे तो नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट +3 है और एनिलीन में नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट -3 है, सो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज +3 to -3 6 यूनिट्स, सो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 6 यूनिट आया तो चार्ज विल बी 6 फैराडे। ओके, so if it is clear, then solve this question. Its 4 molar aqueous solution of NaCl is prepared and 500 ml of the solution is electrolyzed. This leads to the evolution of the chlorine gas at one of the electrode. Atomic mass of sodium and mercury is given and 1 Faraday value is given 96500 coulomb. The first question is the total number of moles of chlorine gas evolved. The second part, it is asked if the cathode is mercury electrode, the maximum weight of amalgam formed from the solution. And the third part is total charge of coulomb is required for the complete electrolysis. बड़े अपने आप ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। So let's start. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस इवॉल्व्ड। तो देखो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl अगर हम करा रहे हैं तो पहले आप NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस लिखो, ठीक है? फर्स्ट का आंसर बी है। It will form Na plus and Cl minus. एनोड पे Cl minus और OH minus के कॉम्प्लेक्स। I'm solving just a. तो फर्स्ट पार्ट में एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो Cl minus will convert to Cl with the loss of electron and 2 Cl atom will combine to give you chlorine gas. उसका मतलब क्लोरीन गैस उतना ही मोल बनेगा उसका हाफ मोल बनेगा जितना मोल NaCl है। NaCl हमारे पास 4 मोलर 500 ml है, तो आप यहाँ से मोल्स ऑफ NaCl निकालो सबसे पहले। So this comes out to be molarity into volume in liters. Molarity is given 4, volume is given 500 ml divided by 1000. So this comes out to be 2. NaCl के मोल्स 2 है और अब ध्यान से देखो एक मोल NaCl से हाफ मोल Cl2 बनेगा। So आपको गिवन है 4 molar aqueous solution is given prepared from 500 ml solution। तो पहले आपने उसके मोल्स निकाले, so it is 4 into 500 by 1000, that comes out to be 2। ठीक है, बस इससे मोल्स ऑफ Cl2 निकालेंगे। So moles of Cl2 formed as 2 into 1 by 2 means 1। First part clear?
In second part it's given if the cathode is of is mercury electrode, then the maximum weight of amalgam formed from this solution. तो मरकरी के केस में क्या होता है कि जो Na+ है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके पहले सोडियम बनाता है, और जो सोडियम बनता है वो मरकरी से रिएक्ट करने के बाद सोडियम अमलगम बना लेता है, राइट। तो हमारे पास टोटल 2 मोल्स ऑफ Na+ है, तो उससे 2 मोल्स ऑफ अमलगम फॉर्म होगा। उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, उससे आपको उसका अमाउंट मिल जाएगा। अमाउंट ऑफ sodium amalgam, if you calculate, it comes out to 2 into molecular mass. Sodium is 23 and mercury is 200, so it is 446. फर्स्ट पार्ट का आंसर बी हो गया, सेकेंड पार्ट का आंसर डी हो गया। Sodium amalgam is not the chemical formula. Sodium amalgam is solution of sodium and mercury. मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कास्टर कार्नर सेल। देखो Na+ की रिएक्शन मरकरी से कराने से सोडियम अमलगम बन रहा है, उसी से सॉल्व किया, ठीक है। एंड देन द लास्ट पार्ट में लिखा है टोटल चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस। तो अब देखो अगर हमें 1 मोल इलेक्ट्रोलिसिस करानी है वी नीड 1 फैराडे चार्ज। NaCl का 1 मोल इलेक्ट्रोलाइज कराना है तो वी नीड 1 फैराडे चार्ज, और NaCl टोटल कितना इलेक्ट्रोलाइज कराना है 2 फैराडे 2 मोल्स। सो फॉर 1 मोल NaCl चार्ज रिक्वायर्ड इज 1 फैराडे। हमारे पास कितना है 2 मोल्स ऑफ NaCl, so charge needed is 2 फैराडे, which is same as 2 into 96500 कूलम। इसको सिंपलीफाई कर लो 193,000। केयरफुली तीनों पार्ट एक बार चेक कर लीजिए, कुछ डिफिकल्टी हो तो बताइए। Now the next question is, two electrolytic cells are containing acidified ferrous chloride and another acidified ferric chloride are connected in series. The mass ratio of iron deposited at cathode in the two cells will be. Two electrolytic cells, one containing acidified ferrous chloride and other acidified ferric chloride, are connected in series. The mass ratio of iron deposited at cathode in the two cells will be. In this question, two cells are connected in series. तो हम लोग फैराडे सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। तो उसने बोला हुआ एक सेल में आपके पास फेरस क्लोराइड FeCl2 और दूसरे सेल में FeCl3। जो सेल 1 है हमारे पास उसमें है FeCl2, इससे आयरन डिपॉजिट हो रहा है Fe सॉलिड फॉर्म में, और सेकेंड सेल जो है सेल 2 उसके अंदर अपने पास सब्सटेंस है FeCl3, उससे भी आयरन डिपॉजिट हो रहा है सॉलिड फॉर्म में। तो बस ऑक्सीडेशन नंबर मार्क कर लो फटाफट। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 हो रहा है और ये +3 से 0 आ रहा है, ठीक है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया आपको 2 और 3। तो अगर इसमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ FeCl2 लिखेंगे तो आएगा मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, और यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ FeCl3 लिखेंगे तो आएगा मॉलिक्यूलर वेट बाय 3। आपसे वेट ऑफ आयरन डिपॉजिटेड पूछा गया है, तो पहले वाले सेल में आपको पता है W/E इक्वल टू कांस्टेंट लिखेंगे, और यू में राइट W1/E1 इक्वल टू W2/E2। ठीक है, तो आपको मास रेशियो ऑफ आयरन लिखना है, तो दैट मींस यू नीड इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन ओवर हियर। तो सेम लॉजिक वहां पे भी लग जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज तो अभी भी वही है।
तो W1 by E1 लिखेंगे तो अगर हमने सेल 1 में डिपॉजिटेड मास W1 ग्राम ऑफ आयरन मान लिया और सेल 2 में W2 ग्राम आयरन, तो अप्लाई द फॉर्मूला, तो W1 by आयरन का एटॉमिक मास 56 by 2 और W2 by 56 by 3। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो W1 by W2 की वैल्यू आ जाएगी 3 by 2। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ? तो अगर एटॉमिक मास ऑफ आयरन 56 यूज करो तो करो, अदरवाइज उसको m मान लो। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन फर्स्ट इक्वेशन बना एटॉमिक मास बाय 2 और सेकंड इक्वेशन बना एटॉमिक मास बाय 3। एटॉमिक मास ऑफ आयरन आप 56 यूज कर लो, अगर नहीं यूज करना आपको नहीं याद है तो m लिख लो, तो कैंसिल हो जाएगा। तो W1 by W2 is 3 by 2। क्लियर है यहाँ तक? दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। अब इस चैप्टर का हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, दिस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। सो फॉर द नेक्स्ट टाइटल कंडक्टेंस। फॉर द नेक्स्ट टाइटल कंडक्टेंस। देखो इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग कंडक्ट करते हैं वो दो तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के थ्रू कंडक्ट होती है थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बोलते हैं। और अगर सॉल्यूशंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है थ्रू आयंस तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। हम लोग दो तरीके का कंडक्शन पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। आपको ये टर्म लिख लेना। एक्चुअली दिस इज द पोर्शन जो मैंने सीधे एनसीईआरटी से सीखा, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कभी-कभी। हमारे पास दो तरीके का कंडक्टेंस है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल और कॉल्ड मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, दिस इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और दूसरा टर्म होता है कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। सो टू टाइप्स ऑफ कंडक्शंस आर देयर। अगर आपको थोड़ा थ्योरी में लिखना है तो ऊपर से इस पॉइंट को लिख लो। Electricity can be conducted in through two ways। अगर पूरा स्टेटमेंट के साथ लिखना है तो यू मे राइट electricity can be conducted in two ways। Number one, electrical conductance, this is through free electrons। ये पोर्शन हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम से। और दूसरा पॉसिबिलिटी है थ्रू सॉल्यूशंस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। दिस इज थ्रू आयंस। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, और जो आयंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो पहला पार्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, वो पोर्शन हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। और जो सेकंड पार्ट है जो आयंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है दैट विल स्टडी इन केमिस्ट्री। अभी इस पोर्शन में मैं आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस सिखाने वाला हूँ, जिसको आयनिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल्स और नोन एज मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, दिस इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली ये डिपेंड करता है मेटल के स्ट्रक्चर पे, उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पे और टेम्परेचर पे। टेम्परेचर का वेरिएंस ठीक से लर्न कर लेना है। इन केस ऑफ वायर्स अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन स्लो डाउन हो जाता है और डिक्रीज कर जाता है। Whereas it is reverse for the solutions। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशंस में कंडक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंडेंट होता है, साइज ऑफ आयंस पे डिपेंडेंट होता है, सॉल्वेंट की विस्कोसिटी पे, सॉल्वेंट के नेचर और विस्कोसिटी डिपेंडेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है इस पे डिपेंडेंट होता है, और टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। और टेम्परेचर के केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आयंस के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो इंक्रीज कर जाती है, बिकॉज आयन की स्पीड अप कर जाते हैं, मोबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन बढ़ जाता है। So these are two types of conductance। One is through wires, that is called metallic conductance, electrical conductance और electronic conductance सारे same term। Another is through ions, जिसको हम लोग ionic conductance या फिर electrolytic conductance बोलते हैं। टेम्परेचर में दोनों का बिहेवियर एक्जैक्टली अपोजिट है, बाकी पैरामीटर्स क्लियर है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे,
इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस में आपको या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस या आयनिक कंडक्टेंस में आपको केमिस्ट्री में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट जो मैंने लिखा है दैट इज फॉर फिजिक्स, वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इन फिजिक्स, अब वहां पढ़ेंगे। अभी केमिस्ट्री में जो पोर्शन है दैट इज कंडक्टेंस टू आयंस, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस या उसी को आयनिक कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला पॉइंट यही लिखना है, लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस से फोकस करेंगे। राइट ऑन द नेक्स्ट टर्म इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। आप उसको नोट कर रहे हैं तो मैं आई कैन वेट फॉर सम टाइम, अपलोड कर दो चाहो तो एक बार। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंडक्टेड इन टू वेज, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू है, और जो आयंस के थ्रू होता है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस या आयनिक कंडक्टेंस बोलते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट टर्म लिख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का पोर्शन ऑफ फिजिक्स में पढ़ते हैं। आयंस के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं दैट विल स्टडी इन केमिस्ट्री, हम लोग लिख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो उसमें दो मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको ठीक से लर्न करना है। सबसे पहले पॉइंट में लिखा है more the number of ions in the solution, more the number of ions in the solution, more is the electrical conductance, yeah, better to say more is the ionic conductance. And second point, if number of ions are almost same, then the ion having higher ionic mobility have higher ionic conductance. ओके, और जो आयनिक मोबिलिटी होती है ये दो पैरामीटर्स पर डिपेंडेंट है। फॉर स्मॉलर आयन ionic mobility is higher, and the ion having higher charge have higher ionic mobility. आयनिक मोबिलिटी स्मॉलर आयन के ज्यादा होती है, और अगर आयन पे चार्ज ज्यादा होता है तो उसकी आयनिक मोबिलिटी हायर होती है। दो पैरामीटर्स मैंने आपको बताए। अगर किसी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम हायर हो जाएगा तो वहां पे आयनिक कंडक्टेंस हायर आ जाएगी, और अगर नंबर ऑफ आयंस ऑलमोस्ट सेम आ जाएंगे तो जिस आयन के लिए आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी उसकी आयनिक कंडक्टेंस हायर आएगी। और आयनिक मोबिलिटी अगर चेक करना होगा तो विल चेक विद टू पैरामीटर्स, स्मॉलर आयन की आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होती है, और जिसका चार्ज ज्यादा होता है उसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, और इस चीज को वन बाय वन एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं आपको। सबसे पहले केस में देखो हमने सपोज किया we take HCl and acetic acid. So let's say 0.1 m HCl and 0.1 m acetic acid here. So HCl जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और एसिटिक एसिड आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इट विल बी ऑलमोस्ट कंप्लीटली अनएज्ड,
अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इट विल बी वीकली आयनाइज्ड। तो जो कंप्लीटली आयनाइज्ड होगा उसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे और जो वीकली आयनाइज्ड होगा उसमें नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो कंप्लीटली आयनाइज्ड है कैरीज मोर नंबर ऑफ आयंस, जो वीकली आयनाइज्ड है वो लेस नंबर ऑफ आयंस। तो अगर हम आयनिक मोबिलिटी कंपेयर करेंगे, आयनिक कंडक्टेंस कंपेयर करेंगे, तो HCl की वैल्यू हायर आ जाएगी एसिडिक एसिड के रेस्पेक्ट में। समझ आया? Sir, how do we decide stronger electrolyte or weaker electrolyte? You know HCl is stronger acid, acetic acid is weak acid. And इलेक्ट्रोलाइट में हमने इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़े ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, उनकी Ka वैल्यू, स्ट्रॉन्गर एसिड जिसका Ka वैल्यू ज्यादा होता है, वीक एसिड जिसका Ka वैल्यू कम होता है। सेकंड पार्ट में जैसे हम लोग कंपेयर Sir, करें ionic equilibrium is not yet done. तो इलेक्ट्रोलाइट तो जानते होंगे, इतना तो कम से कम पढ़ा ही हुआ है, बॉन्डिंग में भी बताते हैं इसके बारे में। HCl is strong acid, इतना तो जानते हो, एसिडिक एसिड इज वीक एसिड, तो सबसे बेसिक एग्जांपल है। दूसरा केस जैसे हम लोग एग्जांपल ले लिया NaOH एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड। पॉइंट 1 है NaOH एंड पॉइंट 1 है बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, so let's ionize them। तो आपको पता है कि अगर हम NaOH को आयनाइज करेंगे तो it will produce two ions, Na plus and OH minus। And if you ionize barium hydroxide, it will produce three ions, barium 2 plus and 2OH minus। So that means barium hydroxide has more number of ions। तो आयनिक कंडक्टेंस अगर कंपेयर करेंगे तो बेरियम हाइड्रोक्साइड के ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, तीसरे पार्ट में अगर मान लो हम नंबर ऑफ आयंस सेम कर दें, तो लेट्स से ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपेयर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ NiCl, NaCl, KCl, RbCl and CaCl in aqueous medium। सबसे कॉमन क्वेश्चन है, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। सो कंपेयर आयनिक मोबिलिटी ऑफ LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CaCl in aqueous medium। NaOH and barium hydroxide both are strong bases, दोनों ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड होंगे। NaOH से 2 आयन मिलेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड से 3 आयन मिलेंगे। नंबर ऑफ आयंस ज्यादा मिल रहा है इसलिए इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस हायर है या आयनिक कंडक्टेंस हायर है। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस का डिफरेंस होगा तो नंबर ऑफ आयंस वेरी करेगा। बट इफ इट इज बोथ स्ट्रॉन्ग और बोथ वीक तो दोनों ही नंबर ऑफ आयंस कम देंगे, तो जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा बन रहे हैं उसके लिए आयनिक कंडक्टेंस हायर काउंट कर लेंगे। ठीक है, इसका अगला पार्ट चेक कर रहे हैं, LiCl, NaCl, KCl, RbCl एंड CaCl। तो देखो Cl माइनस आयन तो कॉमन है सब में, अब आपको कंपेयर करना है बचे हुए आयंस। So what is left over is Li plus aqueous, Na plus aqueous, K plus aqueous, Rb plus aqueous और Cs plus aqueous। आपको पीरियोडिक टेबल में हाइड्रेशन रेडियाई कंपेयर करी होगी, तो अगर हम इनका साइज इन एक्वस मीडियम कंपेयर करेंगे तो
नंबर ऑफ आयंस तो कॉमन हो गए, तो आप कंपेयर किससे करेंगे? आयनिक मोबिलिटी से। और आयनिक मोबिलिटी के लिए क्या चेक करते हैं? चार्ज एंड साइज। चार्ज तो सब में +1 है, तो कंपेयर विद द साइज। तो अगर हम साइज कंपेयर करेंगे एक्वस मीडियम में, तो Li प्लस का साइज सबसे बड़ा होता है। Li प्लस एक्वस इज लार्जेस्ट, then Na plus aqueous, then K plus aqueous, then Rb plus aqueous, then Cs plus aqueous। तो ये साइज का ऑर्डर आएगा। जिसका साइज स्मॉलर होगा उसकी आयनिक कंडक्टेंस हायर आएगी। राइट द ऑर्डर ऑफ आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर इसका ऑपोजिट हो जाएगा। Cs प्लस का साइज सबसे छोटा है तो आयनिक मोबिलिटी हाईएस्ट, then Rb plus aqueous, K plus aqueous, Na plus aqueous and Li plus aqueous। अब यहीं पे अगर आयनिक कंडक्टेंस कंपेयर करेंगे तो will be highest for cesium, rubidium, K plus, Na plus, like this। और you can write the compound also directly। वैसे भी लिख सकते हैं, या जो कंपाउंड थे वही ऑर्डर लिख दो, because Cl minus is common in both the cases। So it's CsCl, RbCl, KCl, NaCl and LiCl। ठीक है, because you have to compare electrical conductance in aqueous medium, so you have to compare size in aqueous medium। That means you have to compare hydration radii, not ionic radii। लिथियम का साइज सबसे छोटा होने की वजह से उसकी पोलराइजेशन पावर सबसे ज्यादा होगी, इसलिए एक्वस मीडियम में लिथियम का साइज सबसे बड़ा होगा। आपने बॉन्डिंग में भी ये चीज पढ़ी होगी। Sir, can you explain the size in aqueous medium once again, please? साइज इन एक्वस मीडियम इज बिकॉज ऑफ लिथियम का साइज सबसे छोटा है तो उसकी पोलराइजेशन पावर सबसे ज्यादा होगी। पजान रूल, अगर पोलराइजेशन पावर सबसे ज्यादा होगी तो सबसे ज्यादा वाटर लिथियम को सराउंड करेगा, तो उसका साइज सबसे बड़ा हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल में भी चीज पढ़ी होगी हाइड्रेशन रेडियाई के नाम पे, या बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा। पजान रूल में दोनों तरीके से बताया जाता है। Li प्लस एक आयन है, उसकी सराउंडिंग में वाटर आएगा। Li प्लस का साइज सबसे छोटा होता है गैसियस फेज में, तो सबसे ज्यादा वाटर अपनी सराउंडिंग में पोलराइज करेगा, तो सबसे ज्यादा वाटर पोलराइज करेगा तो उसका साइज सबसे बड़ा होगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट में बस एक ऑप्शन और कंपेयर कर लीजिए। अगर मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड में कंपेयर करना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बाय बेरियम हाइड्रोक्साइड में आपको आयनिक मोबिलिटी कंपेयर करनी है या आयनिक कंडक्टेंस कंपेयर करनी है। तो आपको पता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है, और बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल इन वाटर होता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की सॉल्युबिलिटी हाइड्रोक्साइड्स के केस में डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड की वाटर सॉल्युबिलिटी हायर आएगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की वाटर सॉल्युबिलिटी कम आएगी। तो लेस नंबर ऑफ आयंस, इन एक्वस मीडियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसके लिए मोर नंबर ऑफ आयंस इन एक्वस मीडियम। जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हो जाएंगे उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हायर हो जाएगी, हमारा रिजल्ट आ जाएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड की आयनिक कंडक्टेंस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा है। ठीक है,
देखो अगर हम कंडक्टेंस को मैथमेटिकली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कंडक्टेंस के लिए पहले हम लोग एक टर्म सीखते हैं। फिजिक्स में आपने एक टर्म सीखा है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, वेयर आर इज रेजिस्टेंस, रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, एल इज द लेंथ ऑफ द वायर एंड ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पढ़ते टाइम तो यही पैरामीटर यूज करते हैं, बट हमें अगर सॉल्यूशंस के थ्रू कंडक्टेंस पढ़नी होती है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल पढ़ते हैं। उस फॉर्मूले को अगर रेसिप्रोकेट करके लिखा जाए तो हमारा कंडक्टेंस का फॉर्मूला आ जाता है। तो if I reciprocate this, तो I'll write 1 upon r is equal to 1 upon rho into a by l। यहाँ पे जो 1 upon r होता है इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। तो 1 upon rho है, बोलते हैं कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। एल जो होता है यहाँ पे उसको बोलते हैं सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ए जो होता है वो होता है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन कांटेक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट। अब अगर इस चीज को अरेंज करके लिखें तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा C इक्वल टू कप्पा इंटू ए बाई एल, या फिर इसी को हम लोग लिखते हैं कप्पा इज इक्वल टू C इंटू एल बाई ए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है। तो कंडक्टेंस इसी से कैलकुलेट करने वाला है। यहाँ पे जो एल बाई ए है इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। L by A is referred as cell constant। ठीक है सर सी के बाद क्या लिखा है? कप्पा। के जैसे ही लिखते हैं, मतलब इट्स अ नोटेशन फॉर कंडक्टिविटी। मतलब ऐसे के लिखते हैं तो इसमें ऐसे लिखते हैं, इसको टर्न करके लिखोगे तो कप्पा। ठीक है। तो अगर हमने एक सेल बनाया तो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो सेपरेशन होता है उसको एल बोलते हैं। जो इलेक्ट्रोड्स का एरिया इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में आता है उसको ए बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी मेजर करते हैं, व्हिच इज रिफर्ड एज कप्पा। ठीक है। तो यहाँ पे हमें कप्पा की डेफिनेशन लिख लेनी है। दिस इज कंडक्टिविटी। ध्यान से देखो, अगर हम इलेक्ट्रोड्स के बीच में सेपरेशन 1 कर दें और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन कांटेक्ट विद सेल जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दें, वही कंडक्टिविटी हो जाएगी। राइट, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 centimeter cube of electrolyte placed between electrodes two electrodes separated by 1 centimeter। So you may see, अगर हम L की वैल्यू 1 और A की वैल्यू 1 पुट कर दें तो वही जो कंडक्टेंस है वही स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ जाएगी।
So conductivity means it is the conductance of 1 centimeter cube of electrolyte placed between two electrodes separated by 1 centimeter. So it is the conductance of 1 centimeter cube of electrolyte placed between two electrodes separated by 1 centimeter. तो अगर हम L की वैल्यू 1 और A की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो जो कंडक्टेंस है वही कप्पा हो जाएगा. ठीक है, स्टॉप हियर. इसके आगे का पोर्शन नेक्स्ट क्लास में करेंगे.